man may be disturbed by these afflictions, for you yourself know that we have been destined for this. For indeed when we were with you, we kept telling you in advance that we are going to suffer affliction, and so it came to pass as you know. कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। चौथा वचन, क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाना पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है और तुम जानते भी हो। So here the Apostle Paul is comforting the Thessalonians and saying that all of us have been destined for, as when become a child of God, for lots of afflictions. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया है उनको सांत्वना दे रहे हैं कि हमारे लिए जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो संतान है, उनके लिए ठहराया गया है कि वो बहुत सारी दुख तकलीफ और कष्ट से होकर गुजरे। And the more mature you become, the more troubles you get. और जितना अधिक आप परिपक्व होते जाएंगे उतनी अधिक दुख तकलीफें आपके जिन में आएंगी। So many times we think that as we become godly Christians, we should have a very comfortable life, very peaceful life. But more and more troubles come across our life. और हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि जैसे जैसे हम ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे और आत्मिक बनेंगे, वैसे से हम बहुत अच्छा एक शांति भरा जीवन जिएंगे। बट पर ऐसा नहीं होता है, हमें बहुत सारी जो दुख तकलीफें वो बढ़ती जाती है। We should live more comfortably and we should become famous, and everybody should appreciate us. It's not like that. We will be harassed like anything. और हम हमें लगता है कि हम बहुत आदर हमें मिलेगा, बहुत हमें सम्मान मिलेगा और बहुत आरामदायक ज़िंदगी मिलेगी। बट पर ऐसा नहीं होता, हमें बहुत ज़्यादा दुख तकलीफें आती है। Just as a child, when they go to school, to first standard, second standard, in first standard, second standard, the problems are small. But as they go to school and college and to graduate, postgraduate, the problems become tougher and tougher and tougher. और जैसे एक छोटे बच्चे जो होते हैं, जब वो पहली दूसरी कक्षा में रहते हैं तो बहुत आसान से सवाल उनकी पुस्तकों में होते हैं। पर जैसे जैसे वो आगे की पढ़ाई करते हैं, 10वीं 12वीं में जाते हैं और ऊंची पढ़ाई करते हैं, तो उनकी जो पढ़ाई है उसमें और कठिन सवाल आने लगते हैं। So then a child has to cut down his playing activities and so many other going here and there, so that he may study well. और उस बच्चे को बहुत सारे जो खेल कूद है, बहुत सारा जो समय जो पहले बिताता था, उसको उस समय को घटाना पड़ता है, कम करना पड़ता है, ताकि वो पढ़ाई को अच्छे से कर सके। So that he will get a good marks and a good future. ताकि उसे अच्छे नंबर मिले और एक अच्छा भविष्य उसका हो। So God also knows what is good for us. If we are to get a lot of very easy life and easy circumstances, God knows that we will backslide, like so many believers are backslidden. But God wants us to be spiritually alert and be very close to the Lord. और प्रभु जानते हैं कि अगर हमें एक बहुत आरामदायक जिंदगी मिली तो हम पीछे हट जाएंगे विश्वास से, और जैसे बहुत सारे विश्वासी जो पीछे हट चुके हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम दुख तकलीफों में से गुजरें, ताकि आत्मिक रूप में हम मजबूत हो सकें। Some of these problems and difficulties come from other people because we take a stand for the Lord. और कई बार ये जो दुख तकलीफ है ये दूसरे लोगों के द्वारा आती है, क्योंकि हम प्रभु के लिए परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं। And many other problems come in our own life, which the Lord allows us sometimes to go through sicknesses, through financial problems, and people who harass us and cheat us, and sometimes we lose money. So many other problems come across our life. और कई बार परमेश्वर ऐसी चीज़ों को अनुमति देते हैं, ऐसी परिस्थितियों को, कि हमें या तो बीमारियों से होकर गुजरना पड़ता है या फिर आर्थिक तंगी आती है। और प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसी दुख तकलीफों में प्रभु के नज़दीक हो, उनके नज़दीक बढ़े। So verse 4 says, so indeed, when we were with you, we kept telling you in advance that we are going to suffer affliction, and so it came to pass as you know. और चौथे वचन में लिखा है, क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है और तुम जानते भी हो। So when we look back into our lives after we became a Christian, we can see that how many difficulties and problems we have gone through.
और हम अगर पीछे मुड़ के देखें हमारे जीवन में, तो जैसे जब हम मसीह बने तो फिर हमें बहुत सारी दुख तकलीफों में से होकर गुजरना पड़ा। When I was young in the Lord, I wanted everything to be good, and I knew that troubles will come, but I wanted them to be small troubles, and I wanted lot of things my own way. और जब मैं जवान था और प्रभु पर विश्वास करता था, तो मैं चाहता था कि अगर दुख तकलीफें आए भी तो वो छोटी हो, ज्यादा बड़ी ना हो, और हर चीजें मेरे हिसाब से चले। But then God had better plans for me. A lot of my plans and everything went upside down, and some things I do not understand why such problems have come into my life. और कई बार जो मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, और पूरे जीवन में उथल पुथल हो गई, और प्रभु का जो इच्छा थी, प्रभु ने जो उनकी इच्छा थी उसके हिसाब से मेरे जीवन को चलाया। So what I had to do is to say, Lord, I just submit to your will. Let whatever you want to do in my life, let it be done. Wherever you want to take me, whatever people you want to come across my way, whatever rank you want to give me, whatever marks you want to give me, let it be according to your will, and teach me your ways. और फिर मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु, मैं आपकी इच्छा में अपने जीवन को सौंपता हूँ, जैसा आपको उचित लगता है वैसा करिए। जैसे मार्क्स आपको मुझे देना चाहते वैसे मार्क्स मुझे मिले, जो नौकरी आप देना चाहते वो मिले, जैसे लोग आप चाहते हैं वो मेरे जीवन के अंदर आए, हर एक परिस्थिति में प्रभु की इच्छा पूरी हो। So the main thing is that we become humble, and it's very difficult for us to become humble. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें नम्र होना है, और यही सबसे कठिन है कि हम नम्र नहीं होते हैं। Humble means to accept God's will and to rejoice in God's will. नम्र होने का अर्थ यह है कि परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करना और उन्हीं की इच्छा में हमें खुश रहना है, And to wait patiently. और धैर्य रखना है परमेश्वर की इच्छा में। We want a lot of things to be done according to our ways in our own time. और हम बहुत सारी चीजें हमारे हिसाब से और हमारे समय के हिसाब से देखना चाहते हैं कि हमारे समय के हिसाब से हो। In Ecclesiastes says that he makes everything beautiful in his time. और सपोपदेशक में वचन कहता है कि प्रभु अपने समय के अनुसार सब चीजों को बहुत ही अच्छे से करते हैं। I can't get that verse. We can get I think 3:11. yeah, 3:11. Yeah, correct. 3:11. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He makes everything appropriate in its time. He has also set eternity in their heart, and yet so man will not find out the work which God has done from the beginning even to the end. सपोपदेशक 3 उसका 11वां वचन, Yeah. उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। So God has put something. We know that we cannot find happiness in this world, but we are people for eternity. और परमेश्वर ने हमारे मन में अनादि काल का जो ज्ञान दिया है, तो हम जानते हैं कि इस संसार में हमें वो शांति नहीं मिलेगी, वो आनंद नहीं मिलेगा, इसलिए हमें अनंत काल के लिए सोचना है। So we know in ourselves we have to wait patiently for God's own time. और इसलिए हमें अपने आप में यह धैर्य रखना है, शांति रखनी है कि प्रभु अपने समय के अनुसार सब चीजें करेंगे। And he does everything well in his time, not our time. और प्रभु हर चीज अच्छे से करेंगे उनके समय में, हमारे समय के अनुसार नहीं। So in the time of waiting, God allows us to be broken and humble, so that in that situation we get the nature of God. और प्रभु जब हम इंतजार करते हैं तो उसमें अनुमति देते हैं कि हम टूटे, नम्र हों, और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन को समर्पित करें। So on Sunday we were talking about that God wants us to live a godly life. और जब रविवार को हम हम देख रहे थे कि हमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक भक्तिमय जीवन बिताएं। So a godly life is a life which is a very humble life. और भक्तिमय जीवन जो हम प्रभु के लिए बिताते हैं वो एक बहुत ही नम्रता भरा जीवन है। And it's the nature of God. और उसमें परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर होता है। And that is a nature which will last for all eternity beyond our death also. और वो जो स्वभाव है वो अनादि काल तक रहेगा, हमारे मृत्यु के बाद भी। So it says in 1 Peter chapter 3, we see the nature of God.
और पहला पत्रस उसका तीसरे वचन में देखेंगे, verse 4. चौथे वचन में, तीसरा अध्याय। This is there. But let it be the hidden person of the heart, with the imperishable quality of a gentle and a quiet spirit, which is precious in the sight of God. वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत बड़ा है। So God values a gentle and a quiet spirit. और परमेश्वर एक नम्र और दीन मन को बहुत मूल्य देते हैं। Why? Because that is his nature. क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव भी ऐसा ही है। By nature, we are very harsh and we are very loud and like to talk and make a lot of noise. और हमारा जो खुद का स्वभाव है उसमें हम बहुत कठोर हैं और बहुत ज्यादा हम बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और ऐसा ही हमारा स्वभाव है। But in all these trials which God sends across our way, we learn to be quiet if we humble ourselves. और पर प्रभु जो बहुत सारी परिस्थिति हमारे जीवन में भेजते हैं, अगर हम उसमें शांत रहना सीखें और दीन रहना सीखें तो हमें नम्रता और मन की दीनता आएगी। Many Christians go through a lot of trials, but they become worse because they don't want to humble themselves. और बहुत सारे मसीह बहुत सारी परेशानियों से गुजरते हैं, पर वो नम्र नहीं हो पाते, वो और कठोर हो जाते हैं, वो सीख नहीं पाते। They're saying why these things are come, because we want the good things of this world also, and all these external beauty we also want, and external riches we also want that also. और वो ये भी चाहते हैं कि उन तकलीफों के साथ में उन्हें संसार की जो धन है, जो सुंदरता है, वो भी मिले, और उनके मन में हमेशा जो दुख तकलीफें रहती है उनके साथ में ये संसार का आनंद भी होने चाहिए। In 1 Peter chapter 3 verse 3, it says people love to decorate themselves. It says let the adornment not be external, but the hair and the wearing gold and jewelry and putting on of costly dresses. और तीसरे वचन में तीसरे अध्याय के ही लिखा है, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। So everybody, all of us human beings, men and women, like to be very stylish. और हम सभी जितने भी मनुष्य हैं, हम पुरुष हो या महिला हो, हमें अच्छा लगता है कि हम बहुत स्टाइलिश हों, इस संसार के हिसाब से हम कपड़े पहने। So we like to wear good clothes and to show off all the good things that we have and all the ornaments and everything. And then we think about these things. और हम हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहने, दूसरों को दिखाएं, अच्छी ज्वेलरीज पहने, सोने चांदी के गहने, और दूसरों को दिखाएं, हमें इसमें बहुत दिलचस्पी रहती है। The main thing is people do this just to impress other people. और सबसे मुख्य जो कारण होता है लोगों का ये करने का, कि दूसरों को खुश कर सके। Even in many believers' weddings, people are just want to impress all the other people that they are so rich and they've got good clothes and they have got costly weddings and they try to show off. विश्वासी भी ऐसा करते हैं कि जब किसी की शादी होती है तो वो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं और दिखाना चाहते हैं कि बहुत अमीर हैं और बहुत सारी चीजें हैं उनके पास। The main basic motive is to show off. और जो मुख्य कारण होता है वो ये है कि दूसरों को दिखाएं, खुश करें। But the Lord says, try to be natural. See that God is there, His presence is there, and you live in fellowship with Him. And then you will have a very natural attitude and you will not be trying to show off to people. और पर प्रभु चाहते हैं कि हमारा जो स्वभाव हो वो बहुत ही आम हो, हम कुछ दिखाने की कोशिश ना करें, जैसे हम बर्ताव करते वैसे ही करें, और ये ध्यान रखें कि हमारी संगति परमेश्वर के साथ में है और हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना है। This is how Jesus walked. He was the most natural person. He lived did not without being desiring to show off, and he was a blessing to God and blessing to everybody else. और यीशु मसीह ऐसे ही थे, वो जब चलते थे, वो कहीं जाते थे तो उन्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी कि वो किसी को कुछ दिखाएं। उनका स्वभाव एकदम मामूली सा रहता था, एकदम वो कोशिश नहीं करते थे कि कोई किसी को अच्छे अपने आप को दिखाएं। So that is his nature. और वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का स्वभाव था। And God wants that nature to come in my life and your life. और प्रभु चाहते हैं कि वही स्वभाव मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी है।
And I thank God that God is doing so much work in my life and your life also, to through all these difficulties and problems, that we may yield our life completely and surrender our life completely, so that the Holy Spirit can change our nature. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें बदल रहे हैं, मुझे ही बदल रहे हैं, आपको ही बदल रहे हैं, कि हम उनका जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वो हमारे जीवन में आए और हम वैसे ही आम स्वभाव में रहें, बिल्कुल भी किसी को कुछ दिखाने की कोशिश ना करें। So we don't look at earthly things but heavenly things. और हम इस संसार की चीजों को नहीं देखते हैं, हम आत्मिक चीजों को देखते हैं। As we sang that song, 4 दिन की जिंदगी है 2 दिन की जवानी, और जैसे हम हमने लोग वही गाए थे। गीत आज गीत गाया था कि 4 दिन की जिंदगी, उसमें 2 दिन की जवानी है। So let us live for eternal things. और इसलिए हम जो अनंत काल की चीजें हैं उनके लिए जिए। So we can hear Brother Ratnaswamy share now, and then others also can share one by one. जो आप प्रभु आपको क्या सिखा रहा है, रोज कुछ ना कुछ सिखा रहा है आपको, तो इसलिए आपका व्यक्तिगत जीवन में आपको सिखा रहा है, तो आप जब शेयर करेंगे तो हमको भी थोड़ा कुछ सीख मिलेंगे, आप सबको सीख मिलेंगे, और हम प्रभु के लिए और उत्सुकता से जिएंगे। So Brother Ratnaswamy will share with translation, बाकी लोग अपने अपना you can share with one language in Hindi, preferably Hindi only, so everybody can understand. I thank God for today's encouraging words. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के प्रोत्साहित वचन के लिए। First Thessalonians chapter 3 verse 3. और पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 3 वचन। That no one should be shaken by these afflictions, for you are yourselves know that we are appointed to this. कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। So we are, when we suffer, when we face difficulties, we should not lose our heart. और जब हम दुख तकलीफों को झेलते हैं, जब हमारे जीवन में आते हैं, तो हमें अपने हमें हार नहीं माननी है, हमें भरोसा रखना है। Jesus told us, in this world you have tribulations. और प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम्हें Yes. संसार में दुख होगा। Be of good cheer, I have overcome the world. Overcome the world. और चिंता मत करो, मैंने संसार को जीत लिया है। Means when we face many difficulties, as sometimes financial difficulties or physical problems, diseases, we should be fully trust in Jesus Christ. और जब हम जो आर्थिक तंगी या फिर किसी बीमारी को हमारे जीवन में आती है, तो ऐसी परिस्थितियों में या दुख तकलीफों में हमें पूरा विश्वास अपना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखना है। That is the meaning. Those who endure till end will be saved. और इसी का ये इस वचन का यही अर्थ है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। Because he will not test us, or he will not allow us tempted to be beyond our ability. और प्रभु हमें कभी भी परखेंगे नहीं या ऐसी प्रलोभन में नहीं डालेंगे जो हमारे सहने से बाहर होगी। God knows our limit. और परमेश्वर हमारी क्षमता को जानते हैं। God give us strength when we are weak. और प्रभु जब हम कमजोर होते हैं तो हमें बल देते हैं। He has told that to Paul, my grace is sufficient for you. और उन्होंने पौलुस को कहा था कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। Yes, my dear brothers and sisters, God's grace is sufficient for us in all difficulties. Amen. और हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह हर एक परिस्थिति में हमारे लिए बहुत है। आमीन। का वचन के लिए कि अभी जैसे पढ़ा कि फर्स्ट निकलास उसका 3 अध्याय और 3 वचन, तो असा की कोणीही या संकटामुळे ढळू नये, कारण तुम्ही स्वतः जाणता की आपण यासाठी नेमलेले आहोत। हे प्रभु का वचन एकदम स्पष्ट रहता है, उसका वचन में हमेशा रहता है, जीवन रहता है। और अभी जैसे ब्रदर ने सुनाया कि संकट के लिए जो हमारे ऊपर संकट आता है उससे हम ढलने का नहीं करके, लेकिन वही प्रभु ने और ये भी बताया कि तुम्हारा सर का बाल भी मैंने गिना है और मेरे इच्छा के अनुसार तुमको कुछ नहीं होने वाला।
ये जैसा वचन है वैसे प्रभु मतलब सांत्वन भी करता है, सांत्वन भी करता है, और हमको जीवन में परखने के लिए वो हमको परीक्षा भी आता है। अभी जैसे ब्रदर रत्न स्वामी ने बोला, तो हमको हर एक का संकट आता है, पर आर्थिक परिस्थिति आता है, बीमारी आती है, रहने का प्रॉब्लम आता है, सब कुछ आता है। लेकिन उसका मतलब ये है कि हम और जास्ती प्रभु को देखने का और नम्र होके हमारा जो अभी जो ब्रदर बोल रहे थे कि अपना नेचुरल जीवन जीने का है, हमको खुद को कुछ दिखाने का नहीं है। मैं ऐसा हूँ वैसे हूँ, मेरे पास ये है वो है, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं एक वचन पढ़ा, लूका वर्तमान उसका 10वां अध्याय, लूका वर्तमान अध्याय हाँ अच्छा, मत्ती में मतलब में यह है कि मत्ती को सुवर्तमान 7वां लिखा है, मत्ती को सुवर्तमान 7वां अध्याय हाँ जो कोणी मला प्रभू प्रभू म्हणतो, 21 वचन, जो कोणी मला प्रभू प्रभू म्हणतो तो प्रत्येक जण आकाशाच्या राज्यात जाईल असे नाही, तर माझा बाप जो आकाशात आहे त्याच्या इच्छेप्रमाणे जो करतो तोच जाईल। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और एक जगह लिखा है कि प्रथम का हाँ मत्ती का 10 आवाज है ब्रदर? हाँ आ रहा है, आ रहा हेलो। है, आ जाओ, हाँ आ जाओ, बोलिए बोलिए। हाँ, और एक जगह लिखी, हाँ स्वर्ग और आदमी में जहाँ है तो झटून लगट करा, बोले तो हमको प्रभु ने बोला है कि जो श्रीमंत मनुष्य है उसको स्वर्ग राज्य में जाने का जितना मुश्किल है, लेकिन जो धन के ऊपर भरोसा रखता है, लेकिन वो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमको श्रम करना चाहिए, श्रम करना पड़ता है। और एक बार मैंने ये वो 10 जो स्त्री कुमारी था, वो 5 शाना और 5 मूर्ख, तो मेरे जीवन में मैंने ऐसे जाना है कि हमको प्रभु ने ये पृथ्वी पर किस लिए रखा है कि प्रभु का हर आनंद और अनुभव उसका लेने के लिए प्रभु ने रखा है। क्योंकि हमको जब हम अब यही है जो मूर्ख और शाने जो हमारे थे, प्रभु ने उसको बोला जिसके पास तेल था वो अपना ऊपर आने के बाद उसके साथ भोजन के लिए गया। ये आनंद है, आनंद क्या, ये आनंद की मतलब आनंद का क्षण था वो। लेकिन जो अंदर नहीं गई तो प्रभु ने उसको बोला कि मैं तुमको जानता नहीं करके। मैं मेरा जीवन में यही सोच रहा हूँ कि अगर ये पृथ्वी को अपन जीना है, अभी जो गाना सुना 4 दिन की 2 दिन की जवानी 4 दिन की जिंदगी है, तो इसमें हमको प्रभु ने क्यों रखा है पृथ्वी पर? हमको जो एक का एक दिन आएगा तो प्रभु हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम कौन है, मैं तुमको जानता नहीं करके। तो मैं बहुत हृदय से मुझे ये वचन लगा कि प्रभु ने हमको जाना, वो क्षण तक हमको प्रभु ने जानना चाहिए कि तो विश्वासी है करके। तो हम और बहुत सारे विश्वास जन ऐसा मैंने भी देखा है कि कुछ तो प्रभु में आने के बाद उनको कुछ तो पृथ्वी का जो आशीर्वाद है वो उनको होना चाहिए, लेकिन जब ये दुख और कष्ट की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं।
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हर क्षण में, हर समय में, क्योंकि प्रभु जो है वो विश्वासी है। वो जो अपना ताकत के अलावा कुछ परीक्षा आने को देता नहीं है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हम न्यायासन के सामने रहने के लिए अभी से हम हर दिन पवित्र आत्मा से भर के और प्रभु का रास्ता देख के, प्रभु आने वाला है और हम जागरूक होके हम प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करने का है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हाँ बोलो। हालेलुया। प्रभूला स्तुती असो, धन्यवाद हाँ, देतो। praise the Lord. आज तेसलोनिकरास पत्र 3 अध्याय, पहले तेसलोनिकरास 3 अध्याय में वचन बोल रहा है कि हम डरने का नहीं, संकट से हम डरने का नहीं। संकट हर प्रकार का रहता है, हर प्रकार के संकट में हमारे विश्वास नारे पर आता है, इसलिए हम प्रभु ने बुलाया है, ये सच है। लेकिन हम डरने वाला नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन जो हमारे साथ है। अभी रविवार दिन में जो तुम वचन बोला था, पहले तिमोथी 4 अध्याय और 10 वचन, या करता तर आम्ही श्रम करतो व निंदाही सोसतो, कारण जे सर्व माणसाचा आणि विशेष करून विश्वासणाऱ्याचा तारणार आहे, त्या जिवंत देवावर आम्ही आशा ठेवली। आमची आशा कोणावर आहे? मेलेल्या देवावर नाही, तर आमची आशा जिवंत देवावर आशा आहे। एक जिवंत देवाचा लेकरू, जिवंत देवाचं लेकरू हे कधीही ढळू शकत नाही, कारण ढळण्याकरता पुष्कळ संकट येणार, परंतु हे ढळण्यासाठी आम्हाला यातून उत्तेजन देण्याकरता जे आमचे बंधू या विश्वासातून, हमारे जो बंधु विश्वासामधून गए है, उसके हम ध्यान देना। क्योंकि दानियल का अध्याय, दानियल बोल रहे, दानियल का 6वां अध्याय और 20 वचन, आणि गुहेजवळ दानियेलापाशी पोचल्यावर त्याने शोकवाणीने आरुळी मारली। राजा दानियेलाशी बोलला व म्हणाला, हे दानियेला, जीवन देवाच्या सेवका, तू त्याची सेवा करतोस, तो तुझा देव तुला सिंहापासून सोडवायला समर्थ आहे। राजाने गवाही दी। आज हमको प्रभु ने जिस ठिकाने रखा है, हम गवाही नहीं देने का, हम दूसरा आदमी हमको गवाही देने का है। ये दानियल राजा ने गवाही दी। और 26 वचन, मी ठराव करतो की माझ्या राज्याच्या सत्तेखालील सगळ्या मनुष्याने दानियलच्या देवासमोर थरथर कापत व भय धरीत जावे, कारण तो जिवंत आहे आणि सदा सर्व काळ आढळ आहे, आणि जे नष्ट व्हायचे नाही असे त्याचे राज्य आहे, आणि त्याचा प्रभुत्व शेवटपर्यंत आहे। हमारा प्रभु का प्रभुत्व है, शेवट पर्यंत हमारे पास रहता है, इसलिए हम ये प्रभु का वचन, ये प्रभु का वचन हमारे साथ है। हम विश्वास नहीं है, इसलिए हमारे साथ है, वचन का संरक्षण है। अभी मत्ती शुभ वर्तमान 16:16 में एक पेत्र ने बोला है, मत्ती 16 और 15, 16-17, तो त्याला म्हणाला, पण तुम्ही मला कोण म्हणून म्हणता? तेव्हा शिमोन पेत्राने उत्तर देऊन म्हटले, तू ख्रिस्त, जीवन देवाचा पुत्र आहेस। मग येशूने त्याला उत्तर देऊन म्हटले, शिमोना बाईनो, तू अज्ञानकीत आहेस, कारण मांस व रक्त याने हे तुला प्रगट केले नाही, तर माझा बाप जो आकाशात आहे त्याने हे प्रगट केले आहे। आज अभी हम विश्वास रहकर जिस ठिकान में रहता है,
उस प्रभु हमारे सब कार्यों में देख रहे था। हम किधर रहते, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, कैसे चल रहे, ये सब प्रभु को मालूम है। इसलिए प्रभु पर अपना विश्वास ऐसा रखकर हम कभी डरने का नहीं, प्रभु के वचन पर हम खंबीर रहना। क्यों? प्रभु ने बोला है, मेरा वचन आकाश पृथ्वी नहीं से होएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं डरेगा। प्रभु का स्तुति हो। आमीन। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक वचन है जो मुझे मैं पढ़ रहा था तो बहुत प्रोत्साहन मिला। याकूब उसका 4 अध्याय उसका 8वां वचन। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। 9वां वचन। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। 10वां वचन। प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मैं बहुत प्रोत्साहन मिला इस वचन से। अभी जैसे भाई ने भी जैसे वचन शेयर किया था, और जो मेन बात बता रहे थे कि उसमें हम हर चीज में हम शो ऑफ करने की कोशिश करते, हम दिखाने की कोशिश करते कि हमारे पास भी कुछ है। तो ये मैंने अपने जीवन में भी बहुत, मतलब ये ऐसा एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है कि और ये सच बात है कि हम सभी के अंदर बहुत ज्यादा है ये बातें, कि हम कुछ भी अगर कपड़े भी पहनते तो हम कोशिश करते कि हम दूसरों को दिखाएं। तो ये मतलब ये बिल्कुल मतलब गलत है। ये हमारा घमंड है हमारे अंदर, कि हम कोशिश करते कि दूसरे हमें देखें और हमें सराहें। हम उनकी जो मतलब कि वो समझे कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, हमारी इंटेलिजेंट हम शो करते हैं कि हम बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं या हमारे पास नॉलेज है। तो मेरे साथ बहुत ये चीज़ें काफ़ी होती है। और कपड़ों को लेकर भी, कि जब मैं कपड़े पहनता हूँ तो कपड़े या फिर कुछ भी मेरे अंदर जो अच्छी बात है तो मैं सोचता हूँ कि हाँ दूसरों को इम्प्रेस करूँ। तो प्रभु अनुग्रह दे कि ये जो पाप है इसके ऊपर हम जय प्राप्त करें हम सभी, और हम नम्र और दीन हो। और इसमें वचन में जो लिखा है कि यहाँ पर बोला है कि दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। तो हमारे अंदर इतना घमंड है, इतना पाप है कि हमें एक हमारे अंदर एक आत्मा, मतलब हमारी आत्मा जो हमेशा एक मतलब उसमें होना चाहिए, प्रभु मदद करिए, हमारी मदद करिए कि हमारे अंदर का जो घमंड है कि हर बात में हम कोशिश करते कि हम दूसरों के लिए कुछ करें। अगर हम कोई अच्छा काम भी करते तो कोशिश करते कि हमें उसके लिए भी प्रशंसा मिले। हम प्रभु के लिए हर काम प्रभु के लिए करें कि हाँ प्रभु देख रहा है, और हमें कोई कुछ बोले नहीं बोले उससे कोई मतलब नहीं, कि किसी को अच्छा लगता है बुरा लगता है, प्रभु क्या समझते वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आज भी जैसे आप भाई ने जैसे वचन शेयर किया था तो उससे भी वो भी प्रोत्साहन मिला कि जब प्रभु बहुत सारी जो डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स में से, क्योंकि हम जो हम्बल होना सबसे मुश्किल है, नम्र होना, अगर हम नम्र हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। हम प्रभु की हर बात को हम मानने लग जाएंगे और प्रभु की इच्छा को हम ग्रहण कर लेंगे कि हाँ प्रभु आपकी जैसी इच्छा है। हम कभी उदास भी नहीं होंगे, हर बात में हम आनंदित रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार परमेश्वर अगर कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। तो अभी हम जैसे हर बहुत छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं, टेंशन लेने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, ये क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो यही रहता है कि हम प्रभु की इच्छा पर विश्वास नहीं कर पा रहे, हम नम्र नहीं हो रहे। प्रभु ने बहुत प्रोत्साहित किया, और परमेश्वर मदद करे मेरी कि नम्र हूँ, और जो पाप है, जो घमंड है, जो दिखाने की कोशिश है, सब दूर हो जाए। क्योंकि ये मैंने खुद में महसूस, मतलब प्रभु ने दिखाया कि कितनी बड़ी गुलामी है एक। हम उन जिन लोगों को हम खुश करने की कोशिश करें हम उनके गुलाम बन जाते हैं, हम एकदम स्लेव टाइप में हो जाते हैं। और प्रभु चाहते हैं कि हम आजाद हो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम आजाद हो जाएं एकदम, हमें प्रभु में हम आजाद हो, और प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वचनों के द्वारा मुझे भी प्रोत्साहन मिला तो उसके लिए आभारी हूँ। उत्पत्ति के अध्याय 4 में 5 से पढ़ूंगा। परंतु आगे केन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई।
तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तो यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। तो ये वचन से प्रोत्साहन मिला था कि परमेश्वर यहाँ पे जो केन का जो ऑफरिंग था उसके लाइफ का हर दिन का, वो उसका जो प्रभु की हृदय नहीं था, और लेकिन जो एबेल था वो हमें प्रभु के लिए उसका दिल से प्रभु को देता था। तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिला, यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि तू भला करे तो परमेश्वर मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं कि डू व्हाट इज राइट। तो परमेश्वर उससे खुश रहते हैं। जैसे साम्स चैप्टर में 1 में भी 6 लिखा है कि गॉड नो, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्ट का मार्ग नाश हो जाएगा। और इवन एक्स चैप्टर में भी पॉल ने बताया था 10:31 में, हम जानते हैं प्रेरित के कार्य में, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो यहाँ पे भी लिखा है इंग्लिश में भी कि वेंट ऑन डूइंग गुड, मतलब प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह भी इस शरीर में थे, जो सही था वही प्रभु पिता की इच्छा में करते थे। तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिला कि मुझे वही चीजें करना है जो प्रभु की नजर में सही है, और उससे मुझे फिर प्रभु का आनंद में अनुभव कर पाता हूँ। यहाँ पे गॉड परमेश्वर बोल भी रहे थे केन को कि वाई आर यू सो एंग्री, वाई डज योर फेस लुक सैड, तो क्यों तुम्हारा निराश हुआ? उसके बाद प्रभु बता रहे थे इफ यू डू व्हाट इज राइट, तो परमेश्वर अगर तुम भला करो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो मैं ये वचन से यही प्रोत्साहन पा रहा था कि मुझे हर दिन वही कार्य को करना है जिस क्षेत्र में प्रभु प्रसन्न होते हैं। और ये आज भाई भी शेयर कर रहे थे इस वचन की, हमें जो है हमारा इनर ब्यूटी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे तो एक वचन है जो मेरा बहुत फेवरेट है, काफी समय से इस पे मैं गाना भी गाता हूँ, और ये है खासकर ये महिलाओं के लिए है, लेकिन मैं इसे अपना इसको याद रखता हूँ तो मैं बहुत सारा सेक्सुअल टेम्पटेशन से बच जाता हूँ। साम्स चैप्टर 31 में 30 है, हम सब जानते हैं। तो ये वचन जो है मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, और इसके द्वारा मैं कभी कभी इस वचनों को गाना भी गाता हूँ, कभी भी ट्रेन में, रास्ते में, अंदर इंदर। ये गाना है साम्स चैप्टर 31 30 में, charm is deceitful and beauty is vain, but the woman who fears the Lord, she shall be praised। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। brother. हेलो, हाँ बोलो brother. एक मैथ्यू चैप्टर 18 के पैराबल बोलना चाहता है 18:23 का। ये जो हम हर दिन एक कोई भी हमारा गलत करता है, वो मैं सोच रहा हूँ, मैं ऑलमाइटी गॉड क्रिएटर ऑफ द हेवंस एंड अर्थ, उसको हम कर्जदार होता है, ड्यू होता है। हर दिन ड्यू होते जाते हैं। ऐसा ड्यू एक दिन 3 साल होता है, 4 साल होता है। लेकिन मैं ऐसा था, मैं भी उसको कैजुअल लिया। वो तो मतलब मेरा पूरा आउटवर्डली नहीं है, पूरा इनवर्डली जो भी रॉन्ग, ये एक गॉड को रॉन्ग करता है जैसा। ऐसा ड्यू होता है। एक दिन वो सेटलमेंट लेता है, एक ही बार में भी 3 साल में भी 5 साल में अकाउंट सेटल करने आता है। लेकिन मेरा ड्यू बहुत रहता है, बहुत। मैं हर दिन जो सिन, मेरा लस्ट, जो भी डिजायर में फुलफिल करता है अंदर का फ्लैश, जो भी वो कर्जदार बंद है मैं खुदा को। तो इसके लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन मैं दूसरे को माफ नहीं किया। इसके लिए वो लास्ट में ऐसा होता है पैराबल में, माफ किया है लेकिन मैं दूसरे को माफ नहीं किया। इसके लिए मेरे को गॉड पनिशमेंट ये देता है, टॉर्चर है ये। मैं इसके लिए वो देख रहे ऐसा दूसरे को बुरा, वो बहुत तकलीफ में गुजरा है। कोई मे भी हो सकता है गॉड माफ किया होगा, वो दूसरे को माफ नहीं किया होगा, ऐसा मेरे को दिल में आता है। वो देखेगा तो दूसरा ऐसा संसार में जो भी ऐसा, वो ये पैराबल का वो 23 से लास्ट 35 तक। जी ब्रदर जी, मैं एक वचन हाँ। हेलो, हाँ बोलो हाँ। अभी ठीक है। जी, मैं एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। मत्ती चैप्टर 16 अध्याय वचन 23 से पढ़ रहा हूँ।
उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पतरस के ऊपर प्रभु गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि जो पतरस थे उनका बात नहीं सुन रहे थे। ये मनुष्यों के बात पर उन्होंने मन लगाया। तो प्रभु को पतरस का अंदर की भी बात उनको पता था, इसके लिए उनको बोले कि तू मेरा ठोकर का कारण है। हर एक बात, अभी हमारा और आपका, जितना हम विश्वासी भाई बहन हैं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमारा दिल में क्या है, भजन संहिता में भी लिखा है 139 में, मैं तेरा बैठना उठना चलना फिरना सब कुछ मैं जानता हूं। इसलिए उनके ऊपर वो डांटे, गुस्सा किए कि तू मेरा ठोकर का कारण है। तो परमेश्वर से हमारा कोई भी बात छुपा हुआ नहीं है, इसलिए हम कभी भी चले तो हमें सावधानी से रहना चाहिए, चलना चाहिए, अपने मन की बातों में भी सावधानी रहना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So आज सभा की समाप्त का टाइम हो गया है, तो हम प्रभु का वचन सुन के प्रभु के ऊपर हमारा मन रखना चाहिए। हम तो एक जंगल में हम सफर कर रहे हैं, ये दुनिया हमारे लिए एक जंगल है, इतना सारा सांप है, ये सब हमको सावधानी से चलना है, नहीं तो ये जंगल की जो कुछ भी चीज है ना, जंगली चीज हमारे मन में भी आ जाएंगे। हम प्रभु का पीछा कर रहा है, तो हमारा जंगल के ये रास्ता और सफर अंत तक हम प्रभु के साथ रहना चाहिए। वी मस्ट नॉट फॉल। कई लोग तो घुसते हैं इधर उधर लालच के साथ के लिए। हम तो ये जीवन एक मरुभूमि है हमारे लिए, तो हम प्रभु के ऊपर नजर रख के हम झेलना है, और उसके बाद अनंत टाइम जीवन के लिए प्रभु का जीवन हमारे पास रहेगा, प्रभु की संगति में रहेंगे। तो ये सबसे बुद्धिमान चीज है। सो विद वेरी वाइज पर्सन लिव लाइक दैट। मूर्ख लोग जो कुछ भी है उनको सामने देखता है, वो उसको चाहिए, उनको नहीं, हमको बोले हमको ये नहीं चाहिए, हमको प्रभु की संगति चाहिए, प्रभु की बुद्धि चाहिए, प्रभु की बुद्धि हमको चाहिए। फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। प्रभु का भय बुद्धि का शुरुआती है। So praise the Lord, brothers and sisters.